ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. इफ अ बार मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. So if a bar magnet is placed in an external magnetic field this way, this is the external magnetic field in which a bar magnet is placed B, and initially suppose this magnet is making some angle theta 1. This is the north pole and this is the south pole. So when it is making some angle theta 1, so a torque is developed on this magnet, on this bar magnet, because of this magnetic field. Two equal and opposite forces are acting on this north and south pole, due to which a torque is developed. Now in which case it's our point is what magnetic potential energy. So whenever work is done against some conservative force, potential energy is stored, and if work is done in the direction of conservative force, potential energy is lost. So whenever we are working against conservative force, then only potential energy is stored. अब जैसे हम अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं, हम अर्थ से ऊपर जाते हैं हाइट पे, so we have to work against gravity, and gravitational force is what, a type of conservative force. तो अगर हम ऊपर जाते हैं, किसी हाइट पे जाते हैं, तो बेसिकली वी हैव टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी. सो एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज़ वी आर वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी. अगर हम दो पॉजिटिव चार्जेस को पास में ले आते हो, इफ यू आर ब्रिंगिंग टू पॉजिटिव चार्जेस क्लोजर टू ईच अदर, so because these two charges are of same nature, so they are going to repel each other. So if you are bringing them closer, it means you have to work against electrostatic repulsion. ये एक दूसरे को repel करते रहते हैं, फिर भी हम उनको forcefully पास में ले आते हैं. So if you are bringing these two charges of same nature closer to each other, so basically you are working against electrostatic force. Here also we are working against electrostatic force, and electrostatic force is what, a type of conservative force. So whatever work is done here, that work is stored in the form of potential energy. Now if you are bringing a negative charge closer to a positive, एक positive के close में एक negative को ले आते हैं, so this negative and positive are already attracted. So when you are bringing these two opposite charges closer to each other, so in this case work is done in the direction of conservative force, because ये तो पहले से ही खींच रहे थे ना, तो हमने उनको पास में लाया, तो हम वहां पे हमने potential energy loss किया, because we are not worked against the conservative. When work is done against the conservative, potential energy is gained. When work is done in the direction of, तो ये दोनों का नेचर पहले से अट्रैक्ट करने का था, तो ये तो खुद ही अट्रैक्ट कर रहे थे, and you are bringing these two charges closer, that's why there is a loss of potential energy. जैसे हम हाइट से नीचे आएंगे, अगर हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं, तो we are going to gain the potential energy because we are moving against gravity. हम नीचे आते हैं, तो we are already attracted towards earth ना, तो अगर हम नीचे आ रहे हैं, basically you are moving in the direction of attraction. So when work is done in the direction of conservative force, there is a loss of potential energy, and if work is done against the conservative force, there is a gain of potential energy. जैसे कोई मास को भी अगर हम इनफाइनाइट से ले आते हैं, मान लो अर्थ है, अर्थ पे कोई मास इनफाइनाइट से आया, then it is going to lose its potential energy because this mass is already attracted towards earth. So if this mass is brought from infinite to the earth's surface, so whatever work is done, that work is what, nothing but loss of potential energy. This mass is going to lose its potential energy. That's why all the objects which are at the surface of earth, सब हर एक जो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे है, सभी ने पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर दिया. इसीलिए हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है अर्थ सरफेस पे वो नेगेटिव होती है, बिकॉज हम इनफाइनाइट से आए हैं और इनफाइनाइट पे थे तो हमारी एनर्जी जीरो थी, अभी हम अट्रैक्शन के डायरेक्शन में आ गए हैं. सो व्हेन वर्क इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन या इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी लॉस करता है. और किसी सैटेलाइट को अगर ऊपर ले जाना है, तो यू हैव टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी. व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज गोइंग टू गेन द पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर अ बार मैग्नेट. So if this bar magnet is initially situated at an angle theta 1, it is making theta 1 angle with the magnetic field. तो यहाँ पे अगर है, if you are rotating this magnet to theta 2 angle, हमने इसको रोटेट कर दिया, इसको ऐसे रोटेट किया, now it is making theta 2. Initially it was making theta 1 angle, मैंने इसको रोटेट किया. तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा ना, तो इस पे जो टॉर्क डेवलप कर रहा है, इस मैग्नेट पे जो टॉर्क एक्ट कर रहा है, दैट टॉर्क इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज mb sin थीटा, जो अभी हमने जस्ट डिराइव किया. द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस मैग्नेट इज व्हाट, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज mb sin थीटा. द टॉर्क तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है, एंड वी आर रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो व्हेन यू आर रोटेटिंग दिस मैग्नेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू हैव टू वर्क अगेंस्ट दिस टॉर्क, बिकॉज़ टॉर्क की टेंडेंसी क्या है, क्लॉकवाइज टर्न करने की, लेकिन हम इसको फोर्स कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. So work is done against magnetic torque. हमने मैग्नेटिक टॉर्क के अगेंस्ट वर्क किया.
and whatever work is done against magnetic torque, because magnetic force is also a type of conservative force, तो इसका टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा था, बट मैंने क्लॉकवाइज नहीं जाने दिया, मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो फ्रॉम थीटा 1 आई हैव रोटेटेड इट टू थीटा 2. So when work is done against the magnetic torque, that work is stored in the form of potential energy. That is what we are going to derive magnetic potential energy. Because इस मैग्नेट को हम इसके मैग्नेटिक टॉर्क के अगेंस्ट घुमा रहे हैं. सपोज अगर इसी मैग्नेट को हम उसी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, इफ इट इज रोटेटिंग फ्रॉम थीटा 2 टू थीटा 1, तो अगर मैग्नेटिक टॉर्क के डायरेक्शन में घुमाओगे तो इट इज गोइंग टू लूज पोटेंशियल एनर्जी. And if you are rotating it against magnetic torque, it is going to gain. So whenever work is done against conservative force, it is going to gain the potential energy. And if work is done in the direction of conservative force, it is going to lose the potential energy. So here, अभी वर्क का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का एक तो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. If force is constant and if force is variable, यहाँ पे क्या है? फोर्स कांस्टेंट है. If force is variable, work is what? Integration of fx dx. If force is variable. In the similar way में if work is done due to torque, तो वर्क का टॉर्क के फॉर्मूला, टॉर्क के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स में लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, टॉर्क में क्या लेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इफ टॉर्क इज कांस्टेंट एंड इफ टॉर्क इज वेरिएबल, वर्क इज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क थीटा d theta. So the same here, because work is done due to torque, so what expression formula we are going to use? Work is equal to integration of torque theta d theta. Why I am using integration? Because this torque is variable. टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है? mb sin थीटा. जैसे थीटा चेंज होता जाएगा टॉर्क चेंज होगा. So basically we are working against variable torque. So that's why I am using integration. Whenever force is variable, torque is variable, work done क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स के केस में fx dx, टॉर्क के केस में f torque theta d theta, because torque is going to perform angular displacement. ये मैग्नेट कहीं गया नहीं, it is just rotating about this point. So angular displacement है, तो we are using torque theta d theta, and its limit is what? Theta 1 to theta 2. So due to constant force, work is force into displacement. Due to variable force, integration of fx dx. In the similar way, due to torque, torque theta, torque into theta. If torque is constant, if torque is variable, you have to use integration of torque theta d theta, because here torque depends on the theta. तो जैसे कि theta change होगा, torque is variable, so I have used integration. बस इसी को हो गया, integrate कर दो. तो integration of torque theta क्या हो जाएगा? m b sin theta d theta. Its limit is what? From theta 1 to theta 2. mb constant है, तो उसको बाहर निकाल लो. And sin theta का integration is what? Minus cos theta. So if you are rotating this, what we are going to get? Work is equal to mb को मैंने साइड कर दिया, integration of sin theta d theta, limit is what? Theta 1 to theta 2. So work is equal to mb. Integration of sin theta is minus cos theta. So minus cos theta, limit is what? Theta 1 to theta 2. Now work is equal to mb. We are putting our upper limit, तो minus cos थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, लिमिट मैंने पुट कर दिया, तो ये प्लस हो जाएगा. सो वर्क और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? एम बी कॉस थीटा 1 माइनस, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा तो उसको मैं सामने लिख दे रहा हूं, तो एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन ऑफ magnetic potential energy if a bar magnet is rotated from theta 1 to theta 2. So when you are rotating a bar magnet, you have to work against magnetic torque, because magnetic torque इसमें clockwise direction में लग रहा है और हमने इसको रोटेट करा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. So when it is rotated from theta 1 to theta 2, work that is what? mb cos theta 1 minus cos theta 2, where theta 1 is what? The initial angle and theta 2 is the final angle. So it is rotated from theta 1 to theta 2. Theta 1 is what? Initial angle and theta 2 is what? Final angle. So theta 1 theta दिया रहेगा, then you can apply this formula to get the torque. अब suppose in an example, if a magnet is rotated from 0 to 30 degree, suppose question ऐसा है कि initially this magnet is in the direction of magnetic field and it is rotated from 60 degree मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले वो magnetic field के डायरेक्शन में था, now it is making 60 degree. So here theta 1 is what? 0 and theta 2 is 60 degree. So you can use this expression. So work done is equal to mb cos theta 1. Theta 1 is 0. So cos 0 minus cos 60. Cos 0 is 1 minus, and cos 60 is half. So 1 minus 1 by 2, you'll get mb by 2. So if a magnet is rotated by 60 degree from its 0 angle, the work done is what? mb by 2. If it is rotated by 90 degree, अगर इसको 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, if that magnet is rotated by 90 degree from its initial angle, from its initial position. Second question, initially this magnet is making some angle 0 and उसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया. So यहाँ पे क्या है? थीटा 1 यहाँ से यहाँ तक रोटेट किया. So theta 1 is 0 and theta 2 is what? 90.
So work is again mb cos theta 1, that is cos 0 minus cos 90. Cos 90 is 0, so cos, so work is equal to mb and cos 0 is 1. So in this case work done is equal to, if it is rotated from 0 to 90, so cos 0 is 1 and cos, हेलो, अभी जा रही है आवाज क्लियर? तो यहाँ पे इनिशियल एंगल इसका कितना था 0 एंड इट इज रोटेटेड फ्रॉम 0 टू 90, so its initial angle is 0 and its final angle is 90 degree. So work done is what? mb cos 0 minus cos 90, so that is just mb. अगर मैं इसको 180 से टर्न करता हूं, थर्ड केस, suppose this is the magnetic field. Initially this magnet is making 0 degree. पहले मैग्नेट ऐसा था, here is the north pole and here is the south pole and it is rotated by 180 degree like this. अभी साउथ तो यहीं पे साउथ वहीं पे है लेकिन नॉर्थ यहाँ पे आ गया. It is turned by 180 degree. So in this case theta 1 is what? 0 and theta 2 is 180. So now work is what? mb cos 0 minus cos 180. The cos 0 is 1 minus cos 180 is what? Minus 1. So maximum work is done. So in this case mb into 2. So work is equal to 2 mb. So this magnet is rotated by 180 degree. Initial angle is 0 and final angle is what? 180 degree. So when this magnet is rotated by 180 degree, work done is maximum, that is 2 mb. तो अगर 0 से हम 60 30 कुछ भी रोटेट कर सकते हैं. मैक्सिमम हमारा वर्क कब होगा? जब इसको 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं. तो व्हेन इट इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री, मैक्सिमम वर्क इज डन, दैट इज 2 mb. और जब भी मैक्सिमम वर्क होगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा. एंड व्हेन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड, दैट इज द मोस्ट अनस्टेबल स्टेट ऑफ दैट मैग्नेट. जब मैग्नेट इसको यहाँ से यहाँ तक घुमा दिया ना, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसने स्टोर कर लिया. तो व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, एट दैट टाइम इसका जो अनस्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है. तो जब व्हेन इट इज मेकिंग 0 डिग्री, व्हेन दिस मैग्नेट इज मेकिंग 0 डिग्री, उस टाइम इसमें कोई टॉर्क नहीं रहेगा. दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट. उसका स्टेट एकदम स्टेबल होगा, वो बैलेंस स्टेट में, स्टेबल स्टेट में. जब उसको 180 डिग्री से टर्न कर दोगे, तो व्हेन इट इज टर्न बाय 180 डिग्री, मैक्सिमम वर्क इज डन, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड. जैसे हमें स्प्रिंग होता है ना, व्हेन दैट स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ, तो उसमें एकदम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो वो उसका स्टेबल स्टेट होता है स्प्रिंग का. स्प्रिंग को हमने एकदम इलोंग कर दिया. When that spring is elongated, so work is done against that spring force. So potential energy is stored in that spring. So when that spring is elongated, potential energy is stored. जितना ज़्यादा potential energy store करेंगे, उतना ज़्यादा unstable होता जाएगा वो spring. So in the similar way में, if this magnet is rotated from its 0 degree, so maximum potential energy store कब होगा? When it is turned by 180 degree. और अगर ऐसा है, that is the most unstable state. जितना ज़्यादा potential energy store करेगा, उतना ज़्यादा unstability आएगी. और जितना कम पोटेंशियल एनर्जी होगा, उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कब है? व्हेन इट इज मेकिंग 0 डिग्री, बिकॉज़ एट दैट टाइम उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं. एंड व्हेन इट इज टर्न बाय 180 डिग्री, सो द मैक्सिमम वर्क इज डन अगेंस्ट द मैग्नेटिक टॉर्क. व्हेन मैक्सिमम वर्क इज डन, दैट इज द मोस्ट अनस्टेबल स्टेट या मोस्ट अनस्टेबल स्टेट ऑफ दैट मैग्नेट. तो व्हेन इट इज मेकिंग 0 डिग्री, दैट इज द स्टेबल स्टेट, इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं. जब 180 डिग्री पर था तो भी वो इक्विलिब्रियम पे है, फोर्स तो अभी भी 0 ही हो रहा है. यहाँ पे भी नेट फोर्स 0, यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. मैं एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. तो दो केसेस बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में कब है और स्टेबल और अनस्टेबल पोजीशन में कब है. तो इक्विलिब्रियम में तो दोनों ही केस में रहेगा. इक्विलिब्रियम में जस्ट अपने को फोर्स देखना होता है. व्हेन नेट फोर्स इज 0, इट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट. तो उसके लिए तो हमको जस्ट फोर्स चेक करना होता है. तो इन बोथ द केसेस, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है. इन द फर्स्ट केस दिस मैग्नेट इज लाइक दिस. Here is the north pole, here is the south pole. This is the direction of magnetic field, and this is the direction of magnetic moment. The angle is what? Theta 1 is 0. If it is turned by 180, तो जब इसको 180 से टर्न करेंगे तो ऐसे आ जाएगा. ये हमारा साउथ होगा या नॉर्थ होगा. Then both the cases, यहाँ पे theta 1 0 है, यहाँ पे theta 2 क्या है? 180. And work done is maximum. Maximum work is done. So maximum work is done, तो total maximum potential energy is stored. अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये स्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे देखो मैग्नेट को जरा देखो, इधर फोर्स क्या है? mb. Here also force is what? mb. तो नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क भी यहाँ पे 0 है. तो ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम और स्टेबल है.
इक्विलिब्रियम स्टेट भी है और स्टेबल स्टेट भी है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी, व्हाई इट इज इन स्टेबल स्टेट, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है। In the second case, the magnet is like this. Here is the south pole, here is the north pole. So how forces are acting? South pole पे ऐसे force लग रहा है, that is mb, and north pole पे ऐसे लगता है in the direction of field, that is also mb. So again these two forces are going to cancel each other. चाहे इसको ऐसे force करो, दोनों cancel कर देंगे, या both the forces are acting towards each other. Still the net force यहाँ पे भी क्या है, जीरो है। 180 पे टॉर्क भी जीरो हो जाता है, बिकॉज टॉर्क इज mb sin थीटा, तो sin 180 भी जीरो होगा, तो यहाँ पे नेट टॉर्क भी जीरो है। 40 टॉर्क जीरो मतलब इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम तो दोनों ही केस में, हियर आल्सो इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, हियर आल्सो इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ये अनस्टेबल है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है कि इन विच पोजीशन दैट मैग्नेट इज इन स्टेबल स्टेट और इन विच पोजीशन इट इज इन अनस्टेबल स्टेट, तो इक्विलिब्रियम के लिए पूछता है तो केवल 0 और 180 बोल दो, बिकॉज़ दोनों में इक्विलिब्रियम है। 0 पे भी नेट फोर्स 0 होता है, टॉर्क भी 0 होता है, 180 डिग्री पे भी नेट फोर्स 0, टॉर्क 0, तो इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी पे जाना होगा। तो व्हेन इट इज मेकिंग 0 डिग्री, नो पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, सो दैट स्टेट इज व्हाट, स्टेबल स्टेट। एंड व्हेन इट इज टर्न्ड बाय 180 डिग्री, सो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड, दैट व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, दैट इज अनस्टेबल स्टेट। तो 0 डिग्री पे स्टेबल स्टेट होगा, 180 डिग्री पे मैक्सिमम वर्क इज डन, दैट्स व्हाई यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी 0 ही था, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 2 mb, which I have calculated. So when maximum potential energy is stored, that is the most unstable state, and when zero potential energy is stored, that is the stable state. इक्विलिब्रियम दोनों पे है। इक्विलिब्रियम के लिए केवल फोर्स और टॉर्क देखना होता है। यहाँ पे भी देखो नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क 0 है, यहाँ पे भी नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, तो इक्विलिब्रियम स्टेट तो दोनों ही है, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, बिकॉज़ फोर्सेस एंड टॉर्क्स आर 0, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, हियर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। सो व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ये इक्विलिब्रियम भी है और स्टेबल भी है। व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, इक्विलिब्रियम है और अनस्टेबल स्टेट में है। अब अगर मान लो वो 90 डिग्री पे टर्न किया, तो उस टाइम पे क्या होता है, टॉर्क भी रहेगा, फोर्स भी रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं रह जाता फिर, बिकॉज़ इक्विलिब्रियम में वो 0 और 180 पे ही होता है। व्हेन इट इज टर्न बाय 90 डिग्री, लेट्स सपोज द नेक्स्ट केस,